شاید ہم سے کرپشن زیادہ ہو چکی ہو. ہم اپنے دور کی قسم نہیں کھاتے کیونکہ خانہ کعبہ میں بھی جیب کٹ جاتا ہے اور حالات ایسے ہیں کہ جمہوریت آپ جب گنتی کا نام رکھ لیتے ہیں اور پھر ایسے ملک میں جہاں پر ہر شخص اپنے آپ کو بلوچ، افغان، پشتون، سندھی، پنجابی، مہاجر، جیسے حسن نثار صاحب نے کہا 100 تومن پر بندہ سید بن جائے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک بات، جیب میں ڈالے تو شاجی ہو جائے، تو پیر صاحب قبرستان والے ولدیت چینج کر دیں، کہہ رہے کہ یہ تو ڈی این اے ٹیسٹ کرانا پڑے گا قوم کا. بہت خوبصورت بات کی اس نے، بہت خوبصورت بات. اب یہاں پر اس گنتی کی پالیٹکس میں 342 کے حال میں یعنی 100 اگر اس کو ملا دو سینٹ کے تو 442 یعنی 442 کے حال میں جب مجھے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو قومی اسمبلی میں رہنے کے لیے اور وزیر اعظم بننے کے لیے اور حکومت کو چلانے کے لیے 170 180 آدمی چاہیے اور میں ہوں 125 آدمی. 125 وہ جن کو میں خود بھی روزانہ پکڑ کے رکھتا ہوں کہ اللہ کے لیے میرے ساتھ رہ جانا. فرض کیجئے کہ ہم سے بہت سارے ساتھی کسی اور تو پھر اس لیے آپ کو وہ بھی خریدنے پڑتے ہیں، لوگ بھی خریدنے پڑتے ہیں اور پھر ان کو کھلی چھوٹ بھی دینی پڑتی ہے کہ جو مرضی کریں آپ. میں کہتا ہوں جو جس کا میرے قبیلے ذات برادری سے تعلق بھی نہ ہو اس کو جب میں اپنے سسرال میں اپنی لیے جگہ دے دیتا ہوں دسترخوان میں، پھر اس کے نخرے اسی انداز میں داماد کے ہو جاتے ہیں. یہ تو پھر آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے، میرج آف کنوینئنس ہوتی ہے. میں کس طرح انکار کروں جب مجھے انہوں نے بیٹھے جو ہے نا اپنے دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں، کاف لیگ ہے، نون لیگ ہے اور علماء ہیں، جوہلاء ہیں، جو بھی ہے، مجھے 180 آدمی پورے کر کے حال میں بیٹھنا ہے. یہ تو میرا قسم ہے کہ میں نے سیٹ کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن یہ تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا دورانی میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے جس کو لایا ہے 180 آدمیوں کو لا کر کے جو میں نے بٹھایا ہوا ہے وہ بندے صرف میرے ساتھ اس کمٹمنٹ کے ساتھ ہے کہ آپ ہماری طرف نہیں دیکھیں گے. جس دن بھی میں نے ایک لمحے کے لیے بھی تسبیح اٹھایا کہ یا اللہ ان کو ہدایت دو اور ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ ہماری ہدایت کے متعلق دعا ہی کر رہا تھا، تو شام کو وزیر اعظم نہیں رہے گا، پریزیڈنٹ پاکستان نہیں رہے گا، پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں رہے گی. یہ خوف میرے دل اور میرے پریکٹیکل میں موجود ہے، نہ صرف میتھمیٹکس میں موجود ہے بلکہ پریکٹیکلی موجود ہے. اب آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بتا دیں کہ میں اپنی پارٹی میں اپنے بندوں کو تو نکال سکتا ہوں جو اتحادی اور اتفاقی میرے پاس ہے، جن کا امین فہیم صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، میں نے کہا سب کو اگر میں نے اس دسترخوان کو بچا ہی دیا، صاحب کے صاحبزادے، میں کہتا ہوں میں نے اس دسترخوان کو بچا ہی دیا ہے تو اس میں ابھی میں وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو میں کیسے انکار کروں. اس وجہ سے بہت ساری جگہوں پر سر نیچے کرنا پڑتا ہے، اولاد کی وجہ سے بھی اور کسی اور کی وجہ سے. پھر اس کا مطلب ہے کہ اولاد کی وجہ سے سر نیچے کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ درست ہے یہ الزامات. دیکھو میں الزامات نہیں ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے، آئی نو کہ آپ ڈیفینڈ نہیں کریں گے. میں الزامات کی تردید نہیں کرتا، تائید نہیں کر رہا. میں اس وجہ سے کہ اگر میرے جوتے میں آ کر کے کوئی بیٹھ کر کے چلنا شروع کرے تو اس کو سمجھ آئے گا کہ اس کا سائز، اس میں کتنے کیلے اور میخے ہیں موجود. ٹوٹے پھوٹے جوتے کے ساتھ جو میں رواں دواں ہوں تو اس میں میرے پاؤں کو پتا ہے کہ اس میں کتنے چھالے پڑے ہیں اور اس منزل کو پہنچانے تک جو میرا سہرا آپ نے یا مجبوری میرے سر پہ آپ نے ڈالی ہے تو اس جمہوریت کو میں لے کر کے سر مجبوری نہیں ہے نا، یہ مجبوری ہے. ایک لمحے کے لیے فوجی ایک سے حسن نثار صاحب مجھے اجازت دیں گے آپ کہ فوجی کو بھی تو ہم نے دیکھ لیا، سید بھی آیا، مشرف صاحب تو سید کے حیثیت سے آئے، بڑے خوش ہو گئے، 2 کتے اس نے رکھ کر کے سینے پر پورے دنیا کو دکھایا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں. اور وہ بعد میں خان صاحب کو بھی دیے انہوں نے، وہی 2 کتے جو تھے. اب مجھے بتا دو، اب نے اس سے پہلے ضیاء الحق کے اسلامی کو بھی دیکھ لیا، اس سے پہلے بھی بڑے اچھے سارے ادوار دیکھ لیے. صحیح بات ہے. اب سوائے اس کے کہ کوئی ایک ایسا جبہ نشین آ جائے جو واقعی کسی کو نہ چھوڑے، وہ انقلاب لے کے آ جائے، جو کہ پاکستان میں اس کی گنجائش صدیوں تک نظر نہیں آئے گی. نہیں بالکل نہیں ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر کس طرح سے کوئی صاحب آ سکتے ہیں. بڑی اچھی بات کری عبرانی صاحب نے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی حسن نثار صاحب کا. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ایک ہوتی ہے فائنینشیل کرپشن اور ایک ہوتی ہے مورل کرپشن. آج انہوں نے اس میں ریلیجس کرپشن بھی ایڈ کر دیا تو میں اس کا شکر گزار ہوں. بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈسکرائب کیا. اور انٹلیکچوئل کرپشن بھی سر، اس کو بھی شامل کرنا پڑے گا. یہ سب چیزیں کرپشن میں آ جاتی ہیں. ایک بندے نے لکھا تھا کہیں، شاید حسن نثار صاحب ہی ہوں، کہ ٹوٹل پاکستان کو نیا پرائم منسٹر لینے کے لیے آل یو نیڈ از 50 ارب روپیہ. 50 ارب روپیہ بھی میرا خیال ہے شاید انہوں نے
हायर एस्टिमेट दिया है। यानी कि हमारे सेनेट के इलेक्शन हुए पिछली दफ़ा तो लोगों ने कहा जी बलूचिस्तान से 8 करोड़ रुपया लगेगा आने के लिए, फाटा के लोगों ने कहा जी कि तकरीबन 15 से 16, तो आप एवरेज कर लीजिए 10-12 करोड़ लगा लीजिए। यू नीड 100 के अवान में से आपको 50 चाहिए, तो जो मर्जी चाहें हम करवा लें, या जो मर्जी लेजिस्लेशन जो है उसको रोक लें, जो मर्जी लेजिस्लेशन उसको इंट्रोड्यूस कर लें, सिर्फ 50 बंदे आपको मेजॉरिटी आपके पास हो जाएगी। सो 50 को ज़रूर दे दें आप 10 करोड़ से या 15 से, तो आपको सिर्फ 500 करोड़ सिर्फ। 172 का आपको प्राइम मिनिस्टर चाहिए नेशनल असेंबली में। ये लोग कहते हैं जी हमें एवरेज 5 करोड़ खर्च करता होते हैं हमारे नेशनल असेंबली के इलेक्शन में। मैं कहता हूँ जी आपको डबल ट्रिपल कर दें, उसको मल्टीप्लाई कर दें 172 से, तो मेरा ख्याल इससे भी कम में जाके आपके जिसको चाहें प्राइम मिनिस्टर बना लें, पाकिस्तान की सारी तकदीर आप चेंज कर दें। तो जब किसी लेकिन ये खरीदी हुई जमहूरियत में क्विकली ब्रेक से पहले एक कहता चलो मैं कि जब किसी अमेरिकन कोई कहता है बात तो हम बड़े नाराज होते हैं, तो किसी अमेरिकन या कांग्रेसमैन ने कहा था फॉर अ गिवन सम ऑफ मनी पाकिस्तानी विल सेल देयर ओन मदर। आपको याद है? आपको हमें बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा हमें, हमने बहुत गाली निकाली। लेकिन आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम उस तरफ चल रहे हैं कि जहां पे जाके ऐसे लग रहा है कि बड़े बड़े लोग, अभी एक बड़े बंदे का नाम आ रहा है आजकल आप सुन रहे हैं अखबार में, जिसने सारा कुछ कहा जी कितने मैंने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया सिर्फ इस वजह से कि शायद असरदास हो। हाँ, ये बिल्कुल। ये हसन निसार साहब, ब्रेक से पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या हमारी मुआशरे का इन्हतात इस हद तक हो गया है कि हर आदमी इसके अंदर किसी पे एतबार नहीं रहा, अगर कोई ऑनेस्ट भी है तो लोग उसको भी शक की निगाह से देख रहे हैं इस वक्त। क्या होगा इसका नतीजा? क्योंकि कोई इदारा नहीं बचा, कोई शख्स नहीं बचा, कोई शख्सियत नहीं बची, सो किधर लोग देखेंगे? उम्मीद खत्म हो रही है। जी आप मुझसे जी ब्रेक के बाद नहीं, मैं बात सुने, प्योर साइंसेस में भी एक्सेप्शंस होती हैं। तो ये कहना कि बिल्कुल ही कोई एक छोटी सी परसेंटेज है जो हत्तुल इम्कान ये कोशिश करते हैं कि करप्ट ना हो, लेकिन ये लोग मुआशरे के, हमारे मुआशरे में दयानतदार लोग इस मुआशरे के हीरोज नहीं हैं, विलन्स हैं। उनकी वजह से ये गंदा निजाम खड़ा है। वो हर जगह एक दफा मैंने जुल्फकार चीमा पुलिस के हैं, मैंने कहा ये इन जैसे लोग जो है बर्बादी का बायस हैं, इनकी वजह से ये खड़ा है, अभी तक गिर नहीं रहा। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं चीजों को माइक्रो लेवल पे देखना मुझे जरा मुश्किल लगता है, और वो थोड़ा मैं चीजों को थोड़ा और तरीके से देखता हूँ। इस एक बात ध्यान में रखें, मसलन जादू छड़ी आपके पास आ जाए आसमान, कोई ऐसा कोई मंत्र आ जाए कि मुल्क से करप्शन खत्म हो जाए, आप यकीन करें 30 दिन के अंदर पूरी आबादी भूखी मर जाएगी। ये सारा कुछ खड़ा ही करप्शन 2 नंबर इकॉनमी पे है। अच्छा, ये जो आप कहती हैं, लोग कह रहे हैं इस दौर में करप्शन बढ़ गई, ओ भाई इस दौर में करप्शन नहीं बढ़ी, ये दरअसल इन्फ्लेशन का मामला है जी। आज से चंद साल पहले का 100 रुपया जो है वो आज के 300 के बराबर है या 400 के बराबर है। सो उस प्रोपोर्शन से बड़ी है, तो उसको आप बढ़ना नहीं कह सकते। आप मेरी गुजारिश समझ रही हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रुपए की कदर कम हुई है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। उसके नतीजे में जो अगर मैं 10 साल पहले जिस काम का मैं 100 रुपया हराम वसूलता था, उसका आज मैं 500 ले रहा हूँ या 800 ले रहा हूँ। सही बात है। जब आप फिगर्स देखते हो तो आपको वो बहुत ही खौफनाक लगते हैं। हर स्कैंडल, हर स्कैम जो है वो अरबों में है। मुसीबत ये है, कल करोड़ों में होता था, कल करोड़ की कोई वर्थ वैल्यू थी, आज का 1 अरब कल के करोड़ के बराबर है, या 2 या 4 करोड़ के बराबर। एक बात। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं ना, एट रोम डू एज द रोमन्स डू। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाए, मैं गाड़ी चलानी छोड़ देता हूं। मेरा ये लेवल है हाइजीन का पर्सनली। लेकिन आप यकीन करो, बाज़ औक़ात ट्रैफिक का इतना जबर और इतना प्रेशर होता है कि मुझे वायलेट करना पड़ता है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आपको, यानी ऐसे अवामिल भी होते हैं जो कि करप्ट करवा रहे होते हैं, करप्शन करवा रहे होते हैं, भले वो छोटी हो भले वो बड़ी हो। मुल्क में मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी कह रहा हूं, कुछ अहम लोग इस पे बड़ा चीखें हैं, वो उनको ज्यादा पाकिस्तानियत आई हुई है, वो ज्यादा मामे हैं इस मुल्क के। मैंने कहा कि इस मुल्क में जो फुटपाथ पे बैठा छाबड़ी लगा के रिस्क कमा रहा है, वो खुद भी हराम खा रहा है, अपनी औलाद को भी हराम खिला रहा है, क्योंकि फुटपाथ पैदल चलने वाले का हक है। और कुरान में जो जालिम है वो कोई छुरी मारना, गोली मारने वाला, मुक्का मारने वाला, ठुड्डे मारने वाला जालिम नहीं है। जुल्म का मतलब, लुग़वी मतलब ये है, आप लोग उठाएं और देख लें। ठीक बात। फुटपाथ पे छाबड़ी जुल्म है। लेकिन अब दूसरी तरफ वो जो जालिम है
उनको हम कहते हैं गरीब अवाम। इस मुल्क में अब करप्ट का और ईमानदार का, अच्छे और बुरे का, जालिम और मजलूम का फर्क मिट गया है। ये फ्री फॉर ऑल किस्म का मुआशरा है। इसको जो मैं कहता हूँ ना कि जब तक इसको पहला दो गुस्ल चाहिए इस मुआशरे को, एक तेजाब के साथ गुस्ल से आप, सही बात है, दूसरा गुस्ल वो ब्लड बाथ होना चाहिए जी बिल्कुल। ये शायद कोई, अदरवाइज ये गंदगी का ढेर है जी ये बिल्कुल, बदबू का, गंदगी, गलाजत का ढेर है ये। हाँ जी, जिधर हाथ रखो वही कुछ है। हसन निसार साहब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि नाउमीदी में से उम्मीद जन्म लेती है, तीरगी में से रोशनी आती है। ये देखें, ये फिल्मों के और अच्छे रूहानी इस्लाही नॉवलों के जुमले हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। सही। बदउनवानी के हवाले से बात हो रही है, और जितनी बात है वो करप्शन के हवाले से, मुआशरे की, और हमारे मुल्क का जो मिजाज बन चुका है इसके हवाले से हम बात करें। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है, तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले ज़ाहिर है कि हम बहुत थोड़ा सा हम लुत्फ भी ले रहे थे कि जो माशरे की हालात है, यानी हम इतने शायद बेहिस हो गए कि हम खुद अपना मरसिया पढ़ते हैं और मरसिया पढ़ते हुए हंसते भी हैं। महमूदुर रशीद साहब, क्या इस माशरे में सब कुछ बिकाऊ माल हो चुका है? क्या हमें बिल्कुल नाउमीद हो जाना चाहिए? कोई हल हमारे पास नहीं है, इसी तरह लोग हुक्मरान आते रहेंगे, लूटते रहेंगे, और आवाम लूटती रहेगी और खुद लुटाती भी रहेगी। इसमें मैं समझता हूँ गो हालात बड़े मायूस कुन हैं, लेकिन हमारे दीन में जो मायूसी है ये भी गुनाह इसको कहा जाता है। और अगर हम इसमें सीरियस एफर्ट्स करें हर लेवल पे, हर सतह पे मुआशरे के अंदर, तो इसमें बेहतरी के हालात पैदा हो सकते हैं। मसलन मेरा एक ये गुमान है और मैं ये समझता हूँ कि जो इस मुल्क की नौजवान नस्ल है वो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक जो है वो बेजार है, और एजुकेशन के साथ साथ लोग बड़े रोशन ख्याल भी हैं। और इस महमूदुर रशीद साहब, नौजवान नस्ल बेजार नहीं है, वो तो खुद नहीं, मैं आप देख लें, मैं बाय एंड लार्ज मैं इसकी तरफ आता हूँ, मैं इसकी तरफ आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात यह है कि ये जो आप मिसालें दे रही हैं ना जी, इसके लिए तो मैं 2-3 चीज़ें आपसे अर्ज करूंगा। नंबर एक ये कि जब तक इस मुल्क के अंदर ऑनेस्ट एंड क्रेडिबल लीडरशिप नहीं आती, हुकूमती सतह पर इसका कला कमा नहीं हो सकता। और मैं ये समझता हूँ कि एक जो है ऑनेस्ट और एक क्रेडिबल अगर लीडर आता है, उसके साथ एक टीम आती है, तो आधी करप्शन जो सरकारी सतह पे हो रही होती है, महकमों के अंदर हो रही होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो एक तो हमें इस तरह की ऑनेस्ट और क्रेडिबल लीडरशिप जो है। लेकिन दूसरी बात, मियां साहब इजाजत दे, मुझे इजाजत दे कि जो, अच्छा चले मान ले आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आई एग्री विद यू, लेकिन आपकी लीडरशिप के ऊपर कोई सवाल बेशक उठाए नहीं उठाए, लेकिन आपकी टीम जो है उसके ऊपर जी मुझे आप बात जरा मुकम्मल कर लेने दें, फिर टीम के भी बात कर लेंगे। मैं आपसे ये कर रहा हूं कि पहले तो आप जो आपकी लीडरशिप है, ऑनेस्ट लीडरशिप, वो उस आगे आए तो वो इस तरह की एग्जाम्पल सेट करे। दूसरा, आहनी हाथों के साथ करप्ट लोगों के बारे में आप कोई भी एक ज़ाब्ता आप मुकर्रर कर दें कि जनाब ये पिछले सारे मामलात ख़त्म, और आइंदा अगर ये चीज़ें हुई तो इनको चौराहों पर लटकाएं 150 लोगों को। तो मैं ये समझता हूं कि आइंदा के लिए सबको कान हो जाएंगे कि ये चीज़ अगर की तो ये, अगर ख़त्म नहीं होगी तो ये कम ज़रूर हो जाएगी।